So in this video we will discuss about the listeriosis, an important bacterial disease. So without any further ado, let's get started. So simply, the disease listeriosis is also known as the circling disease. It is caused by the Listeria monocytogenes, and the disease is characterized by the encephalitis, systemic infection or septicemia, and abortion. Coming to the etiology, the causative agent is Listeria monocytogenes, that is rod-shaped gram-positive intracellular organism. The organism is present everywhere in the nature and can be recovered from the soil, vegetation, dairy products, animal feces, and sometimes the oropharynx and tissues of the healthy animal. The species affected are ruminants, pigs, dog, cats, and humans. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द लिस्टीरियोसिस। तो ये जो लिस्टीरियोसिस इन्फेक्शन है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम सर्कलिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, उसकी वजह से ये सर्कलिंग डिजीज और लिस्टीरियोसिस का इन्फेक्शन होता है। The disease is characterized by encephalitis, systemic infection, that is septicemia, and abortion. जो भी एनिमल लिस्टीरियोसिस से इफेक्टेड होंगे वहां पे आपको इंसेफेलाइटिस देखने के लिए मिलेगी, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन ड्यू टू द इन्फेक्शन। सेप्टिसेमिक कंडीशंस वहां पे डेवलप हो जाएंगी, एज वेल एज जो भी प्रेग्नेंट एनिमल इन्फेक्टेड होंगे वहां पे आपको अबॉर्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। Now coming to the etiology, so simply the causative agent is Listeria monocytogenes, that is rod-shaped gram-positive intracellular organism. अब ये जो बेसिकली लिस्टीरियोसिस और सर्कलिंग डिजीज इन्फेक्शन है, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, जो कि रॉड शेप्ड होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है। Moving to the next, the organism is present everywhere in the nature and can be recovered from the soil, vegetation, dairy product, animal feces, and sometimes the oropharynx and the tissues of the healthy animals. बेसिकली ये जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स बैक्टीरिया है, जो कि एक रॉड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये नेचर में हर एक जगह प्रेजेंट होता है, सॉइल में भी, वेजिटेशन में भी, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, एनिमल फीसेस में भी, एंड समटाइम यू कैन रिकवर इट फ्रॉम द healthy animals also, like from the regions of oropharynx and different tissues. ठीक है। Coming to the species affected, this Listeria monocytogenes can affect the ruminants, pigs, dog, and cats as well as humans. It means that this listeriosis or the circling disease, which is caused by the Listeria monocytogenes, is zoonotic in nature. ठीक है। Moving to the next, we will discuss about the spread of the disease. So simply the ingestion of the contaminated materials and milk and the congenital infection led to the septicemia and the abortion. The infection of the terminals of the trigeminal nerve following the injuries of the buccal mucosa from the feed, from nibbling on the plantation, or from the infection of the tooth cavities, and led to the encephalitic form of the infection. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। सो सिंपली द इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल, मिल्क, congenital infection led to the septicemia and abortion and act as the source of infection. देखो, अगर कोई एनिमल कंटामिनेटेड मटेरियल और मिल्क पे फीड करता है तो ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एनिमल में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन कंजेनाइटल रूट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम pregnant infected mother to its progeny, and all these conditions will also develop the systemic infection, that is septicemia, in an animal as well as the abortion in the case of a pregnant one. ठीक है। After that, the infection of the terminals of the trigeminal nerve following injuries of the buccal mucosa from the feed, from the nibbling on plantation, or from the infection of the tooth cavities led to the formation of an encephalitic form of this particular infection. देखो, basically ये जो इन्फेक्शन है ये टर्मिनल्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बकल म्यूकोसा में क्या होगा? इंजरी हो जाएगी। अब बकल म्यूकोसा में इंजरी कहाँ से हो सकती है? फ्रॉम द फीड, फ्रॉम निबलिंग ऑन द प्लांटेशंस, एंड फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द टूथ कैविटीज, एंड ऑल दीज फॉर्म लेड टू द एंसेफेलाइटिक फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शन, जिसमें क्या होगा? जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होगा उसका ब्रेन जो होगा वो स्वेलन अप हो जाएगा। ठीक है।
Now moving to the pathogenesis, the listeria have the ability to penetrate the epithelial cells like the conjunctiva, urinary bladder and intestine. The bacteria have a surface leucine, that is rich proteins called the internellins, which help in the penetration to the epithelial cells. Bind to the E-cadherins on the host epithelial cells, which act as a receptor for the internellins. Thus, the organism gains entry into the cells, they multiply, destroy the cells and are then released. Following the release, they are phagocytized by the macrophages. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the pathogenesis. So simply the listeria have the ability to penetrate the epithelial cells like conjunctiva, urinary bladder and intestine. देखो, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो लिस्टीरियोसिस बीमारी है इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। अब इन बैक्टीरिया के पास एक एबिलिटी होती है कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के एपिथेलियल सेल को पेनिट्रेट कर सकते हैं, लाइक एपिथेलियल सेल्स ऑफ कंजक्टिवा, यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, आफ्टर दैट the bacteria have a surface leucine that is rich in protein called the internellins and help in the penetration in the epithelial cells of the host. Basically, ये जो बैक्टीरिया है इनके पास एक सरफेस ल्यूसाइन होता है जो कि प्रोटीन में रिच है, उसका नाम क्या है, इंटरनेलिन्स, और इन इंटरनेलिन्स की मदद से ही वो इजिली एपिथेलियल सेल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, then they will bind to the E-cadherins on the host epithelial cells which act as a receptor for the internellins. अब ये देखो, बैक्टीरिया के पास एक इंटरनेलिन प्रेजेंट था जो कि हेल्प करता था बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करने के लिए इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द होस्ट। ठीक है, अब बेसिकली इंटरनेलिन का रिसेप्टर्स हमारे होस्ट एपिथेलियल में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज E-cadherins। तो अब सिंपली क्या करेगा, बैक्टीरिया आके E-cadherins के साथ बाइंड अप कर जाएगा एंड दस द ऑर्गेनिज्म गेन्स द एंट्री इनटू द सेल, और फिर क्या होगा, बैक्टीरिया हमारे होस्ट सेल में एंट्री कर जाएगा। देन दे विल मल्टीप्लाई, डिस्ट्रॉय द सेल एंड आर देन रिलीज्ड। फिर ये क्या करेगा, बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, वहां के सराउंडिंग सेल को डिस्ट्रॉय करेगा एंड देन दे विल रिलीज। आफ्टर द रिलीज दे आर फैगोसिटाइज्ड बाय द मैक्रोफेजेस, और जैसे ये बैक्टीरिया रिलीज होगा जो होस्ट सेल के मैक्रोफेजेस होंगे उसको फैगोसिटाइज्ड कर देंगे। ठीक है, moving on, to avoid the destruction, they escape from the phagosomes and lies freely in the cytoplasm on the macrophages, multiply and carried within the cell to different tissues called the septicemia. The activated macrophages phagocytize and kills the bacteria. Organism within the macrophages are carried by the centripetal movement through the trigeminal nerve and reach the medulla oblongata. So देखो भाई, अभी तक हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो होस्ट सेल के अंदर पहुंच चुका है, isn't it? अब होस्ट सेल के अंदर पहुंचने के बाद उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करा, सराउंडिंग सेल को डिस्ट्रॉय करा एंड देन दे गेट फाइनली रिलीज्ड। जैसे ही वो सेल रिलीज होंगे दे शुड गेट फैगोसिटाइज्ड बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ द होस्ट सेल। लेकिन टू अवॉइड दिस डिस्ट्रक्शन दे एस्केप्स फ्रॉम द फैगोसोम एंड लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मैक्रोफेजेस। बेसिकली इस फैगोसिटाइजेशन से बचने के लिए ये बैक्टीरिया क्या करता है, मैक्रोफेज के साइटोप्लाज्म में ही खुद को रिसाइड करा लेता है एंड देन दे एस्केप्स द फैगोसिटाइजेशन। ठीक है, after that they multiply and carried within the cell to the different tissues caused the septicemia. अब ये जो बैक्टीरिया है अपने आप को सेल में मल्टीप्लाई करेगा एंड देन दे विल कैरी टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑल ओवर द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, जिसकी वजह से एक सिस्टमिक इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और यू कैन से वहां पे सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस फैगोसिटाइज एंड किल्स द बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है वहां पे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का जन्म होगा, वो क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को फैगोसिटाइज करेंगे और किल करेंगे। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विद इन द मैक्रोफेजेस आर कैरिड बाय द सेंट्रीपिटल मूवमेंट थ्रू द ट्राइजेमिनल नर्व एंड देन दे रीच द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, फैगोसिटाइजेशन से बचने के लिए अपने आप को साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेज में ही रिसाइड करा लेते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया मैक्रोफेज में अभी प्रेजेंट थे ना, वो क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल मूवमेंट की वजह से ट्राइजेमिनल नर्व और मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंच जाएंगे ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल, जिसकी वजह से इंसेफेलाइटिस की कंडीशन वहां पे डेवलप हो जाएगी। ठीक है, so now moving on, we will discuss about the signs and the lesions. So there are basically 3 different syndromes can be noticed, that is encephalitis in the case of human, cattle, sheep and goat and pigs, systemic infection that is septicemia in the case of human, cattle, sheep, pigs, dogs and cat, and the abortion in the case of human, cattle and the sheep. The endocarditis and purulent lesions in the organs and the tissues can also be seen, which is less common. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द साइंस एंड द लीशन। सो सिंपली
जो भी एनिमल लिस्टीरियोसिस से इन्फेक्टेड होंगे वहां पे 3 सिंड्रोम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वन इज एंसेफेलाइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन इन द केस ऑफ अ ब्रेन। ये हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इन द एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, कैटल्स, शीप, गोट एंड पिग्स। ठीक है। अब दूसरा सिंड्रोम है दैट इज सिस्टमिक इन्फेक्शन, या तो आप कह सकते हो सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया की कंडीशन हमें ह्यूमन, कैटल, शीप, पिग, डॉग एंड कैट में देखने के लिए मिलेगी। एंड नेक्स्ट वन इज द अबॉर्शन, और अबॉर्शन हमें कहां पे देखने के लिए मिलेगा? इन द केस ऑफ ह्यूमंस, कैटल एंड शीप। There is one less common lesion and it is endocarditis and the purulent lesions in the other organ of the tissues. बेसिकली बहुत लेस कॉमन और रेयर लीशंस है इन द केस ऑफ लिस्टीरियोसिस। यहाँ पे क्या होगा? इन्फेक्टेड एनिमल के हार्ट वाल्व्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और पुरुलेंट मतलब कि पस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा इन द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द टिश्यू प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। बट दीज लीशंस आर वेरी अनकॉमन और रेयर इन नेचर। ठीक है। So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.